आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, वन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द अनदर वन इज मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। So ESR spectroscopy is also called as EPR spectroscopy. So the full form of ESR spectroscopy is electron spin resonance spectroscopy, which is also called as electron paramagnetic resonance spectroscopy. So because here we can see it is based on electron spin. So electron spin must be present in this spectroscopy. So as all of you know that electron has spin either plus half or minus half. So if we have paired electron, if it is upward direction, in upward direction it will show plus half, and if it is downward direction then it will show minus half. So if we will have no unpaired electron, suppose all the orbitals are filled, completely filled, so it will have paired electron, so it will show plus half and minus half. So the spin value will be equal to plus half minus half, that will be 0. So here we can see in paired electron the spin is 0. But because we want electron spin in this spectroscopy, that's why we want unpaired electron either in upward direction or in downward direction. So from this part we can conclude that our molecule must possess unpaired electron. एक unpaired electron होना ही चाहिए. Okay, so we will see this with some examples. We will take H2 molecule example, hydrogen molecule example. So because electronic configuration of hydrogen is 1s1 molecule, so if we will draw MO diagram of H2 molecule. So we can see here it has one electron, and in MO diagram it will be paired electron. So there is no unpaired electron. So that's why it is ESR inactive. ये ESR inactive है because यहाँ एक भी unpaired electron present नहीं है, spin 0 है. because ये ESR basically electron के spin पे depend करता है. So electron spin नहीं है means ESR inactive है. So एक और example लेंगे, that is we will take beryllium. No, we will take boron atom, boron molecule. So we all of we know that boron का configuration होता है 1s2 2s2 2p1, because p ऑर्बिटल, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे p ऑर्बिटल का, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो ये दोनों एमओ इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो यू कैन सी हियर डायरेक्टली हम लोग p ऑर्बिटल का एमओ करेंगे, बिकॉज 1s2 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ. सो इफ विल ड्रॉ दी वैलेंस एमओ डायग्राम, तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पे सिग्मा, एंड यहाँ पे पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार. सो बिकॉज यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है बोरोन एटम में, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है. सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे लोवेस्ट एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल. सो यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है पाई ऑर्बिटल, पाई. सो यू कैन सी हियर पाई एक्स पाई वाई. ये बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड हेयर, दोनों भी इलेक्ट्रॉन अनपेड है यहाँ पे. सो बिकॉज इट हैज़ अनपेड इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम ESR एक्टिव. ये ESR एक्टिव मॉलिक्यूल है बिकॉज प्लस हाफ स्पिन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. बिकॉज स्पिन है यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ ESR एक्टिव मॉलिक्यूल. सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस का स्पिन. न्यूक्लियस का स्पिन मतलब कि आई वैल्यू
मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, आई वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये आई क्या है एक्चुअली, यहाँ पे आई है न्यूक्लियस का स्पिन, जो मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं उसका स्पिन, न्यूक्लियस स्पिन। तो आई वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कभी भी 0 है या नहीं ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोई भी एटम लेंगे या मॉलिक्यूल लेंगे। सपोज हम लोग एटम ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का क्या है एटॉमिक मास 14, सॉरी इट इज़ 14। सो 14 है, तो 14 को डिवाइड करेंगे 4 से एंड वी विल गेट इन नॉट होल नंबर, होल नंबर नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। it will be become 3 point something. So because it is not a whole number, it is not completely divisible by 4, that's why it is magnetic nuclei and it has a spin more than 0. It means it has some spin, यहाँ पे कुछ spin present है, 0 नहीं है क्योंकि completely divisible नहीं है। वहीं बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेंगे, ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, कम्प्लीटली डिवाइजेबल है ये नंबर। इसका मतलब ये इनएक्टिव है, तो ये ESR इनएक्टिव है, ये नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लिया है और ये मैग्नेटिक न्यूक्लिया है, बिकॉज ये कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है। सो ये तो बात हो गई न्यूक्लियस स्पिन की। तो अभी हम लोग देखेंगे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मीन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ESR एक्टिव है और कौन सा नहीं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे और कितने सिग्नल्स मिलेंगे ये भी फाइंड आउट करेंगे। तो बिकॉज हम लोग ने पहले हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिए थे, हाँ दिस वॉज अ हाइड्रोजन एग्जाम्पल। तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिए थे तो वही लेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन में यहाँ पे दोनों भी पैड इलेक्ट्रॉन है, यू कैन सी हियर पैड है। तो हम लोगों को अनपैड चाहिए, तो या तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे या तो एक रिमूव कर देंगे। वी हैव 2 ऑप्शंस। सपोज वी हैव H2 है, राइट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है अनपैड, तो या तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा H2 प्लस, दिस इज़ वॉट कटायन रेडिकल, ये प्लस हो गया इसलिए कटायन रेडिकल है ये। नाउ वी कैन ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। सो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सी हियर, एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा दिस टाइप, एंड एक रिमूव करेंगे तो यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा, तो ये बेसिकली ये सिंगल हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो ये सिंगल होगा, मतलब अनपैड है यहाँ पे, तो यहाँ पे ESR एक्टिविटी मिलेगी। तो यहाँ पे लेंगे H2 माइनस चार्ज आया बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है अनायनिक रेडिकल है, अनायनिक रेडिकल, राइट। तो अभी फाइंड करेंगे H2 के कटायनिक रेडिकल का एग्जांपल लेके हम लोग इसका कैलकुलेशन पार्ट करेंगे कि कितने सिग्नल्स आएंगे। तो अगर सिग्नल्स की बात करेंगे तो यू कैन सी दैट H2 है, राइट, और प्लस कटायन लिए हम लोग ने, तो यहाँ एक रेडिकल है और 2 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वही वो स्पिन दिखा रहा है यहाँ पे। तो 2 हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियस 2 हो गया। तो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का 2Ni + 1। N इज आवर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ 2 है, सो 2 × 2 हो जाएगा, और स्पिन वैल्यू हाफ है, 1 इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, तो यहाँ पे गिवन होगा ये आप लोगों को, तो यहाँ +1 करेंगे। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, दिस 2 विल बी कैंसल बाय दिस 2, ये हो गया, तो यहाँ पे मिलेगा 3, 2 + 1 3। तो दिस इज आवर ट्रिपलेट 3 लाइन्स। सो दिस H2 मॉलिक्यूल विल गिव 3 लाइन्स तो मिल जाएगा। अब इसको इस इंटेंसिटी कैसी होगी इस 3 लाइन्स की, तो आप लोग इसको पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हो। पास्कल ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, आई वैल्यू जब हाफ होती है उसके लिए ही वैलिड है, ये उससे ज़्यादा वैल्यू के लिए नहीं है। तो आई वैल्यू जब हाफ होती है उसके लिए पास्कल ट्रायंगल होता है। n = 0 पे एक सिग्नल मिलता है, एक स्प्लिटिंग नहीं होती है। फिर n = 2 का लेंगे तो एक इंटेंसिटी रेशो मिलता है। देन n = 3 पे 1 2
1 ऐसा मिलता है। तो आप लोग आई थिंक पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा, जूनियर क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1 3 3 1 फिर 1 4 6। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये 2 नंबर को ऐड करते हैं हम लोग पास्कल ट्रायंगल में। तो क्या करना है, यहाँ 1 है, 1 का 1 1 नेक्स्ट इंटेंसिटी भी आया, फिर ये 1 फिर से लिखेंगे दोनों कॉर्नर पे और ये दोनों को ऐड करके बीच में, फिर 1 1 कॉर्नर पे लिखेंगे ये दोनों को ऐड करके यहाँ, और फिर ये दोनों को ऐड करके यहाँ। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 1 रहेगा एज इट इज़, फिर ये दोनों का एडिशन यहाँ है, ये दोनों का, फिर ये दोनों का 3 + 3 6 हो जाएगा, फिर 3 + 1 4 एंड फिर 1। तो ये है पास्कल ट्रायंगल, बट ये वैलिड है ओनली i = ½ के लिए। सो बिकॉज यहाँ i = ½ था, तो ये 3 लाइन की इंटेंसिटी हो जाएगी 1 i = ½ है, एंड n देखिए आप, n = 2 है यहाँ पे देखिए, तो इंटेंसिटी क्या होगी 1:2:1। तो इस टाइप का सिग्नल मिलेगा, सी ऐसा सिग्नल मिलेगा। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन रेडिकल। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। थोड़े एग्जांपल्स से हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे हम लोगों को क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये वर्क कैसे करता है। हाँ, एक वन मोर थिंग, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑलवेज वी विल गेट ओनली 1 सिग्नल। वो सिग्नल फर्दर स्प्लिट होगा, एंड दैट इज़ नॉट अ सिग्नल, दैट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ 1 सिग्नल। सो यहाँ पे हमेशा एक ही सिग्नल रहता है और वो फर्दर स्प्लिट होता है। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट वन इज़ हाँ, केमिकल शिफ्ट इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्पेक्ट्रा कैसा होता है, अभी स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो दैट हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं स्पेक्ट्रा ऐसा शार्प मिलता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग केमिकल शिफ्ट HI1 NMR में केमिकल शिफ्ट होता है, बट यहाँ पे केमिकल शिफ्ट को डिनोट करते हैं G वैल्यू से। G वैल्यू वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा होता है H1 NMR में, डेल्टा इन H1 NMR प्रोटॉन NMR में डेल्टा होता है, तो यहाँ G वैल्यू होता है, राइट। और 2 पीक का डिफरेंस, ऐसे पीक है तो ये डिफरेंस वहाँ पे होता है J वैल्यू कपलिंग कांस्टेंट का। तो यहाँ पे वो कपलिंग कांस्टेंट की जगह हम लोग यूज़ करते हैं A होता है, A वैल्यू इज़ आवर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पीक्स। ओके, सो दिस इज़ आवर कपलिंग कांस्टेंट एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय A। एक और बात है, ESR में हम लोगों को बहुत ब्रॉड पीक मिलती है, आप लोग देख सकते हैं ऐसी, सपोज सिंगलेट मिला है तो ऐसा ब्रॉड मिलता है, और डबलेट है तो ऐसा दिखता है डबलेट। हाँ, ये क्यों होता है, क्योंकि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिलैक्सेशन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विथ ऑफ पीक की विथ का। ये जो पीक विथ है रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये ज़्यादा है रिलैक्सेशन टाइम तो विथ कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम है तो विथ ज़्यादा होगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है तो पिक की विथ बहुत ज़्यादा आती है। तो बिकॉज ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेरिवेटिव हियर। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, दैट दिस वन, और फिर प्लॉट करते हैं तो शार्प पिक आती है। So all of you know that we are using why we are using derivative here। ये तो हो गया डेरिवेटिव क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे। नाउ अभी बाकी के सिग्नल्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का। तो मीथेन है, यहाँ पे रेडिकल है, ओके। तो ये जो रेडिकल है, अगर मीथेन को ओपन करके लिखेंगे तो यू कैन सी हियर हाइड्रोजन 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 3 है, और ये यहाँ पे रेडिकल है, क्योंकि कार्बन का 12 कार्बन जो होता है वो ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, अबेंडेंस ज़्यादा है, उसका है 98.9%, और जो कार्बन 13 होता है उसका होता है 1.1%। तो बिकॉज कार्बन 12 ज़्यादा है, और कार्बन 12 को अगर आप देखोगे 4 से डिवाइड करोगे 12 को, यू विल गेट 3, दैट इज़ होल नंबर, मतलब ये इनएक्टिव है,
ESR इनएक्टिव है ये, दैट्स वाई हम, और 13 एक्टिव है बट 13 का परसेंटेज बहुत कम है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, C को 12 कंसीडर करेंगे बिकॉज यहाँ मेंशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का नियरली 100% होता है H1, अप्रॉक्सीमेट 100% होता है ऑलमोस्ट, सो हाइड्रोजन एक्टिव है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे बिकॉज वही एक्टिव है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2Ni+1, बिकॉज तीनों का इन्वायरमेंट सेम है, देखो तीनों एक ही कार्बन से अटैच है और कार्बन पे रेडिकल है, तो इट विल बिकम 2 × 3 × ½ + 1। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 विल बी 4, वी विल गेट 4 लाइन्स हियर, 4 लाइन्स, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइन्स विल बी according to Pascal triangle, we can see here intensity of the line, तो ऐसा मिलेगा, 4 सिग्नल्स आएंगे, सॉरी 4 आएंगे सिग्नल्स, तो ऐसा आएगा, ऐसे 4 सिग्नल्स आएंगे और इंटेंसिटी होगी 1 3, बिकॉज n = 3 था, n = 4 नहीं था, 3 3 1। सो ये तो हो गया I वैल्यू हाफ के लिए। तो अब बात करेंगे एक डिफरेंट एग्जांपल लेके, और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल, थर्ड वाला। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ईथेन, अभी बात हो गई मीथेन की, अब ईथेन लेंगे। यहाँ पे है CH2 CH3 रेडिकल, यहाँ रेडिकल है, हाँ, बिकॉज यहाँ पे अभी CH2 है, इसको ओपन करके लिखेंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये C है, H H एंड H, यहाँ पे रेडिकल है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों का जो हाइड्रोजन है ये रेडिकल के बहुत क्लोज है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, और ये जो 3 हाइड्रोजन है ये दूर है, इसका एनवायरनमेंट अलग है। ओके, तो ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वो फार्मूला यूज़ करेंगे 2 and 1, बिकॉज इसको 1 कंसिडर कर लेंगे, ये वाले को 2, ये एक जैसे इन तीनों, तो 2 हो गया। N1 I1 + 1 2 N2 I2 + 1। तो अभी कंप्लीट हुआ था इथाइल रेडिकल। तो इथाइल रेडिकल में यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे CH2 है और CH3 है। तो जो CH2 है वो प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग है और CH3 का अलग है, तो दोनों अलग सिग्नल्स देंगे। तो फार्मूला हो जाएगा 2N1 I1, यहाँ पे जो CH2 है उसको, उसके प्रोटॉन को हम लोग 1 मार्क करते हैं और CH3 वाले को 2। सो 1 के लिए पहले लेंगे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, तो 2 × 2 × ½ + 1 ये हो जाएगा CH2 के लिए। एंड द फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला फॉर CH3 के लिए होगा 2 × 3 × ½ + 1, बिकॉज यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। तो यहाँ से आप लोगों को मिलेगी लाइन 3 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 12 लाइन्स। तो यहाँ पे 12 लाइन्स मिलेगी, तो मीन्स 12 सिग्नल जो है सिंगल है बट वो 12 लाइन्स में स्प्लिट हो रहा है। तो अब बात करते हैं इंटेंसिटी रेशो की। तो यहाँ पे बिकॉज दोनों भी प्रोटॉन है और दोनों की I वैल्यू हाफ है, तो फिर से ये पास्कल ट्रायंगल फॉलो करेगा। तो पास्कल ट्रायंगल अगर लेंगे तो ऐसे पहले 3 सिग्नल्स मिलेंगे, ये स्प्लिटिंग हो रही है ये CH2 की वजह से, फिर ये फर्दर स्प्लिट करेगा 4 लाइन्स में, तो उसका इंटेंसिटी रेशो होगा 1 3 3 1 1 3 3 1 देन 1 3 3 1। तो ये तो हो गया इंटेंसिटी रेशो ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से आया। अब टोटल इंटेंसिटी क्या होगी 12 लाइन की, तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ से, बिकॉज ये वाली लाइन जो है 1 है इसका सिग्नल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 × 1 1 3 × 1 फिर देन 3 फिर 1 फिर, बिकॉज बीच की लाइन का जो इंटेंसिटी है वो 2 था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 × 2 2 3 × 2 6 एंड फिर 6 फिर 2, ये बीच के लाइन की इंटेंसिटी हाई हो जाएगा। देन फिर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होके 1 3 3 1 हो जाएगा। तो इस इंटेंसिटी की 12 लाइन्स मिलेगी। ये हो गया मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में।
नाउ एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें आई वैल्यू चेंज होगी, तो हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, यहाँ लेते हैं, ये होगा अपना CH2D रेडिकल। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरियम एटम है, और ड्यूटेरियम एटम का जो आई वैल्यू होता है न्यूक्लियस स्पिन वैल्यू, आई क्या है यहाँ, न्यूक्लियस स्पिन वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस स्पिन जो है 1 है। तो यहाँ बिकॉज यहाँ 1 है तो वी विल पुट इट इन फार्मूला। ड्यूटेरियम अलग है, CH2 अलग है, तो ड्यूटेरियम के लिए देगा ये 2Ni+1, और CH2 के लिए लेंगे 2Ni+1। तो ड्यूटेरियम 1 है तो 2 × 1 × 1 +1 हो जाएगा, और ये देगा 3 लाइन्स फ्रॉम ड्यूटेरियम। वहीं कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन के लिए तो 2 × 2 × ½ +1, बिकॉज यहाँ 2 प्रोटॉन था इसलिए n की जगह 2 ले रहे हैं। तो ये हो गया 3 लाइन। अब ये 3 × 3 टोटल 9 लाइन्स। अब ये 9 लाइन्स देगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी 9 लाइन्स की, तो देखते हैं इसको। बिकॉज पहले ड्यूटेरियम एटम ले रहे हैं, तो ड्यूटेरियम एटम से हमें 3 सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे 3 सिग्नल है। तो ये 3 सिग्नल 1:1:1 का होगा, बिकॉज n = 1 के लिए कितना भी हो आई वैल्यू वो मैटर नहीं करता, आई वैल्यू कुछ भी हो, बट n = 1 के लिए ऑल द लाइन्स इंटेंसिटी विल बी दी सेम। सब लाइन की इंटेंसिटी सेम होगी, वो होगी 1। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम 1 है तो 3 लाइन है, तीनों की इंटेंसिटी सेम होगी 1:1:1। ओके, तो अब बात करते हैं इसके फर्दर स्प्लिटिंग की। ये फर्दर स्प्लिट होगा 3 सिग्नल में, बिकॉज प्रोटॉन से यहाँ हमें 3 सिग्नल मिल रहा है, बट ये n = 2 है, 2 प्रोटॉन थे यहाँ पे इसलिए। तो इंटेंसिटी रेशियो होगा, अब ये जो 3 सिग्नल मिल रहे हैं इनका 1:1 1:1 1:1 ऐसा करके तीनों हो गया। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको ड्यूटेरियम की इंटेंसिटी से, तो ये एज इट इज़ होगा, बिकॉज ड्यूटेरियम का 1 1 1 है। ओके, तो टोटल इंटेंसिटी हो गया 1:1 1:1 1:1। इस तरह की 9 लाइन्स मिलेगी। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे और भी एग्जांपल्स लेके